A warm welcome and good afternoon to all delegates and speakers. I am extremely delighted to welcome a distinguished line of panelists and moderator for this exciting session on the topic expanding the horizon in the satellite and cable TV domain. The moderator for this session is Dr. Atul Naik, founder director Aeon Communications. The panelists are Mr. GC Jain, chairman and MD MCBS, Mr. Devchand Haria, MD OptiLink Network Solutions, Mr. Jignesh Mehta, founder and owner Mehta Infocom Private Limited. Last but not the least, Mr. Ashok Mansukhani, a leading media veteran. I would like to start by a brief introduction of each speaker. I would like to start with Mr. Mansukhani. Mr. Ashok Mansukhani is a leading media veteran and he was the managing director of Next Digital Limited, formerly known as Hinduja Ventures Limited. Recently, the digital cable business known as InDigital and the head end in the Sky business known as NXT Digital, run so far by its material subsidiary IndusInd Media and Communications, has been merged into it by a recent order of the National Company Tribunal. Mr. Mansukhani is a veteran of the Indian media industry and has over 2 decades of operational, regulatory, and strategic expertise. He has been with the Hinduja Group for more than 24 years before retiring earlier in September. Coming to the next speaker, Mr. GC Jain, Chairman and Managing Director of MCBS. Mr. GC Jain has made substantial contributions to the India's space program and has also worked with renowned scientists like Dr. Vikram Sarabhai, Dr. APJ Abdul Kalam, Professor Satish Dhawan, and Professor Yashpal at the Space Application Center, ISRO, for 16 years. Mr. Jain started his career as an entrepreneur in the year 1984 and set up a number of electronics projects in India. Mr. GC Jain promoted MCBS in 1985. MCBS produces a vast range of high-tech communication products and accomplished more than 300 projects in the field of communication and broadcast for government, public, and private sector enterprises. Mr. Jignesh Mehta is the founder and owner of Mehta Infocom, which was founded in 1990. Primarily, he develops, implements, and directs the organization intensive, ambitious business strategies and long-term objectives. Additionally, he evaluates the company's financial, operational, sales, and marketing structures to plan for continual improvements and a continual increase of operating efficiencies. Mr. Devchand Haria, Managing Director of OptiLink Network Solutions Private Limited, is a leading solution provider for digital head-end solutions and distribution for RF networking and fiber optic solutions. Over the last 26 years, OptiLink Networks has developed a leading market position as a thematic system provider and distributor of high-quality satellite receiving equipments, fiber optic equipments, and digital head-end solutions. Last but not the least, Dr. Atul Naik is the founder director at Aeon Communications. He's been active in the broadcast IPTV domain for over 2 decades. His company, Aeon Communication, offers a comprehensive platform to provide value-added services over existing and upcoming communication networks in India. Over to you, Atulji, for an exciting panel discussion. Namaskar and good morning. This is an exciting time when we are e-meeting each other in the new parlance. 2020 has really been an exciting year. And so is the panel here. As Manoj ji has rightly indicated, there are stalwart people who have guided the industry, who have been pioneers in new technologies, delivering solutions, hardware solutions, manufacturing, and definitely with Ashok ji, we have people who have directed the growth of industry. Needless to say, in the very challenging times such as 2020, we are today discussing about expanding the horizon of SCAT. With eyeballs being stolen from multiple media and availability of multiplicity of content on multiple devices, we are talking about the conventional cable and the newfound love of cable, which is the broadband, being in the process of thinking
how do we expand our horizons? So on one hand, when 2020 has threatened the existence of multiple industry fraternities, we as a media communication fraternity have increased substantially. At the same time, we have seen multiple challenges of keeping the networks awake and alive on account of the lockdowns and unavailability of manpower, unavailability of devices, equipment, resources, all of that. And we have seen that during the later half of 2020, the networks have been very, very active and there were no substantial complaints. We have been seeing photographs of our fellow cable operation people keeping the networks on. Therefore, now it is really a pertinent time, post unlock, we all sit together and under the able guidance of our stalwarts, ponder as to how do we expand from here. What is the next mantra that we need to adapt to expand our horizons and definitely place SCAT, the satellite cable and television fraternity, right in the same level playing field of all the other device ecosystems. This small session of about 40 minutes, we will be talking about expansion of horizontal expansion of hardware, manufacturing fraternity, finances, and I'm sure my panelists will throw more light on all these things. So I start with the opening comment from Ashok ji. Ashok ji, when we say expanding the horizon, पहली चीज जो अपने दिमाग में आती है वो क्या है कि होराइजन एक्सपांड करना है तो करना क्या है, किस ऊंचाई को जाने के बाद में होराइजन पर वो चीजें दिखाई देंगी जिनको हम हासिल करना चाह रहे हैं। अभी केबल में 25 साल हो गए हैं और 25 सालों में जो बढ़ोतरी रही है उसके कई फेजेस थे। तो अभी जो फेज हम 2020 में देख रहे हैं उसमें केबल एक प्रकार का नेसेसिटी है और केबल ऑपरेटर को उतना ही रिस्पेक्ट दिया जाता है जैसे कोई आपका फैमिली मेंबर आपके साथ है। तो पहली चीज जो हमें ये सोचना है कि अगर 2020 ने एक बात सिखाई है कि दूसरी टेक्नोलॉजीज हमेशा थे और रहेंगे। ब्रॉडबैंड मैंने पहले भी कहा था, केबल हमारे केबल भाइयों के लिए सरकार ने इसका लाइसेंस या इसका परमिशन आज से 21 साल पहले दिया था। हमें अंदर सोचना है कि अगर हम एक्सपैंड करना चाहते हैं तो हमें कस्टमर को वो देना चाहिए जो कस्टमर चाहते हैं और कस्टमर आज एक ही चीज चाहता है। संक्षिप्त में वो क्या चाहता है कि उनका सर्विस हो 24 घंटे, उनको ब्रॉडबैंड मिले 24 घंटे, उनका एक बिल हो और उनको ये लगे कि मुझे हर रुपया में वैल्यू मिल रहा है। तो जहां तक अर्बन एरियाज का सवाल है, हमारा जो चैलेंज है कि किस तरीके से हम अपने कस्टमर को बेहतर सर्विस दें। और जहां तक एक्सपेंशन का सवाल है वो अगले सवाल या जब भी आप चाहें, बट मैं एक ही इंडिकेशन दूंगा कि हमारे 200 मिलियन घर हैं जी, 200 मिलियन घर, इसमें से 70 मिलियन को अभी तक कुछ पहुंचा नहीं है। करेक्ट, इतना ही मैं कहना चाहूंगा शुरू। जी जी जी, बट एक चीज से मैं शुरू करूंगा कि आपने एक बहुत पर्टिनेंट चीज कही अशोक सर कि ब्रॉडबैंड मिलना है, ये बात हर कस्टमर चाहता है और रुपये की वैल्यू उसको वसूल करनी है। इससे मैं डॉक्टर जैन साहब के पास में जाना चाहता हूं कि जैन साहब, ब्रॉडबैंड मिलना है इसका मतलब डिवाइसेस एक्सपांशन करनी है। हमारा जो कन्वेंशनल केबल का सेटअप हुआ करता था उस केबल के सेटअप से बढ़ करके हमें ब्रॉडबैंड के लिए बहुत सारी चीजें नई अडॉप्ट करनी है। देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ न्यू डिजिटल इक्विपमेंट्स एंड डिजिटल वे इन विच दे आर रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड। तो सर, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और फिर उसके बाद में मैं यही सवाल लेकर के जिग्नेश जी और देव सर के पास में भी जाऊंगा, देवचंद जी के पास में भी जाना चाहता हूं, क्योंकि what is that we actually have to do as a fraternity
to make ourselves available, and वो रुपये की कीमत लौटाने के लिए हमारे कस्टमर को हमें डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में किस तरफ जाना चाहिए? डॉक्टर जैन. Well, see, today it's everybody has to use the internet applications. The technology has come to a level where the convergence of technologies has taken place. Correct. Now, from this convergence, there is always divergence. The divergence is of applications. Divergence is that of opportunities. Correct. So we have to find the answer that there is a divergence of many opportunities for cable operators. Like, you know, the video conferencing, education applications, local meetings, all that can be also done by cable operators using these broadband solutions into their localities, into their areas. करेक्ट. मगर हमारा मुद्दा यह है डॉक्टर साहब कि क्या हम टेक्नोलॉजिकली एज केबल ऑपरेटर आज ये सब चीजें देने के लिए रेडी हैं? ब्रॉडबैंड मात्र पहुंचाने से, सिर्फ ब्रॉडबैंड पहुंचाने से क्या ये सारे एप्लीकेशंस हमारे आ जाते हैं, या हम लोगों को उसके लिए और डिवाइसेस लगानी पड़ेगी और धनराशि और कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि अभी गैजेट्स अवेलेबल है, लेकिन अभी हमको उनको जगह जगह से इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसकी की कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी. करेक्ट. और उसमें अब बहुत सारे लिमिटेशंस आ गए. करेक्ट. जैसा कि सभी को मालूम है कि इन दिस पेंडेमिक एंड बिकॉज ऑफ द इमर्जिंग सिचुएशन, इंडिया China conflict, correct, technology has become now a concern. Correct. See, up to 2006 or 7, we were making technology in India. Correct. We did everything. Then Chinese entered into our business, and many of the manufacturing units became trading units. Now with this conflict and the government guidelines, Make in India and Atmanirbhar, we have to change our methodology. We have to use equipment which are made in India. Maybe, you know, they will have little limited facilities. Correct. India has big talent. India has big manufacturing infrastructure. इसी के साथ डॉक्टर साहब इसमें क्विक आपने बहुत 3-4 पॉइंट बहुत पर्टिनेंट कहे. मैं देवचंद जी को और जिग्नेश भाई को इसमें पूल इन करना चाहता हूं कि एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग की आवश्यकता है, जो भारतीय चीजें, भारतीय डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग की आवश्यकता है. आपने कहा इंपोर्ट भी है, आपने कहा गैजेट्स की अवेलेबिलिटी भी है. एज सिस्टम इंटीग्रेशन फ्रैटर्निटी, देवचंद सर, आई विल स्टार्ट विथ यू. व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू आर सीइंग व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू systems required to be deployed? For example, in Optilink, we see that there are new headends that are being deployed. Are you confining yourself only to cable, or you are now seeing a convergence really happening at the system level, at the MSO end? So what is your take on that? I'm quickly coming to Jignesh Bhai also on that, because both of them will give pertinent replies to this, is what my feeling is. Devchand ji, over to you. Yeah, we have already seen the convergence happening, not now, but last 20 years back. Initially, we were working on the cable networks, on the RF network, and then we shifted on the fiber networks. जैसे fiber बिछते गया, fiber was widely deployed. Correct. तब पता चला कि fiber network is capable not only of cable or RF signals, but it is also capable of broadband and data and other data services, other services also. तो तब से हमने वो convergence देख रहे थे कि इसमें तो अब data और fiber और ये voice और सब आना ही है उसमें. तो हम तब से वो केबल ऑपरेटर्स को एडुकेट कर रहे थे कि आप जो नेटवर्क बिछा रहे हो, जो फाइबर डाल रहे हो, वो सिर्फ केबल के लिए लिमिट नहीं करिए, आप उसको डेटा और उसके लिए ब्रॉडबैंड के लिए भी उसको यूज करो. उसका जो इफेक्ट जो आया है वो लास्ट हम 7-8 साल से देख रहे हैं कि अब लोग उसमें ब्रॉडबैंड सर्विसेज दे रहे हैं. और ये पैंडेमिक के बाद पीपल हैव रियलाइज कि अब तो इनको ब्रॉडबैंड देना ही देना है, क्योंकि जहाँ सिर्फ केबल चल रहा है वहाँ ब्रॉडबैंड की रिक्वायरमेंट्स है ही है.
तो वो ब्रॉडबैंड और वो दे रहे हैं। तो हम दोनों प्रोडक्ट्स में हम पहले से लास्ट 20 साल से कर रहे हैं, और उसमें टेक्नोलॉजी जो यूज करते हैं वो हमें केबल ऑपरेटर्स को एडुकेट करना पड़ता है कि ओके आप ये यूज करो, और दे आर वेरी फास्ट टू अडेप्ट। आज अभी ये इन्होंने इतने फील्ड से लोगों ने सीखा है, और दे आर वेरी फास्ट टू अडेप्ट। तो वो टेक्नोलॉजी और वो हार्डवेयर और वो अडेप्ट करके वो चालू कर रहे हैं, दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, और उन्होंने अपने नेटवर्क्स पे ब्रॉडबैंड, वॉइस और ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया है, एंड दे आर डूइंग इट नाउ। इन शॉर्ट देवचंद सर, आप ये एडवोकेट कर रहे हैं कि कन्वर्जेंस तो है और कन्वर्जेंस होना होगा। यस, अगर आज केबल नेटवर्क्स मैच्योर हो चुके हैं, डिजिटल एडेंट्स जाके सबके घर पे सेट टॉप बॉक्सेस लग चुके हैं, जो आगे जो ग्रोथ है, आगे जो हमने पैंडेमिक में देखा है ओटीटी और आईपीटीवी का ग्रोथ, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो लोगों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ब्रॉडबैंड इंप्लीमेंट करना होगा। एंड आगे का जो फेज है वो हाइब्रिड का फेज है, जिसपे केबल टीवी प्लस ओटीटी और आईपीटीवी चलना चाहिए। तो जो हाइब्रिड सेट टॉप बॉक्स और उसका जो ये फेज है, उसके लिए वो एडेंट्स रेडी होने चाहिए, और कन्वर्जेंस तो होना ही है उसमें तीनों में। With the kind permission of Mr. Atul, let me share my point of view also, as the other panelists have shared their point of views. The networks are, the need of the time is that the networks are supposed to be pure, proper highways to deliver content. The content could be delivered either in terms of your traditional linear CATV, आप OTT के जरिए उसको मतलब देखें, मतलब आपको डेटा पहुंचाना है या किसी भी तरह से। तो any cable operator or ISP is supposed to be an SP. It would he or she would be a service provider. उसके कोई भी घर पे या कोई भी ऑफिस में वहां जाके उनको कंटेंट आइदर डेटा में या तो CATV सिग्नल में उनको पहुंचाना है। So for that he has to make his network very proper, very robust and up to the mark to deliver this content. Nowadays, as I mentioned last time also, nowadays now like an oil, data is very much valuable. मतलब डेटा है तो सब कुछ है। हमने पिछले 6 महीने में इस प्रकार के पैंडेमिक में सबने चेक भी कर लिया, सबने देखा भी सही कि वर्क फ्रॉम होम होवे या एजुकेशन होवे, आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होवे और काफी सारी बातें हैं, सब कुछ डेटा के जरिए आपके वहां से हुआ है। सो दो दिस सर्विस प्रोवाइडर हैव टू मेक देयर नेटवर्क्स वेरी वेरी एफिशिएंट and robust. 1, 2, they have a very good access to almost all household. घर पे जाने के लिए सोसाइटी में या कॉलोनीज में या किधर भी जाने के लिए these our people have a very good access with more than just Mansukhani Saab just said, more than 25 years of relationship with the direct end customer. So they have to make the network because of their relationship with proven commitmental deliveries to these customers since last more than 2 or more than 2.5 decades. They have a very good relation and access to the last mile customer. Correct. They first, as I just mentioned, and they have to upgrade. They have... मनसुखानी सर जी, मुझे लगता है जिग्नेश जी, हेलो या कैन यू हियर मी? मनसुखानी सर, जिग्नेश जी ने बहुत इंटरेस्टिंग एक बात कही। अब ये केबल सर्विस प्रोवाइडर से निकल करके एनी एसपी हुआ है और उसको फिर इंटरनेट सर्विस प्रोविजन है, उसको फिर ये कहना है कि डेटा इज ऑयल। बहुत पॉपुलर बात सर ने भी कही, जिग्नेश सर ने भी कही कि डेटा इज ऑयल। अब एनी सर्विस प्रोवाइडर
ये जो आज का नॉमेनक्लेचर आ रहा है, जो 25 साल पहले से केबल सर्विस प्रोवाइडर या एलसीओ से निकल करके आज एक नए एनी सर्विस प्रोवाइडर तक हम आए हैं, एज द ऑर्गेनाइजेशन एट द अपेक्स, as the organization that pushes the service and the signal from the top and delivers that across the breadth and length of the country. आपको क्या लगता है ये एनी सर्विस प्रोविजनिंग में आप जैसे टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशंस का कितना रोल है, कितना टेक्नोलॉजी और कैपिटल इन्फ्यूजन आप लोगों से नीचे की तरफ को जाना चाहिए, कितना नीचे बहना चाहिए? देखिए, जब आज से 25 साल पहले इंडसइंड मीडिया शुरू हुई थी, तो मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया 96 में, अब हो गए 24 साल। अब जब मैं आया वहां, मुझे मल्टी सिस्टम ऑपरेटर का ज्यादा ज्ञान नहीं था, पर जब हम देखे कि उसका पर्पस क्या था, कि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर केबल भाइयों के साथ काम करके बेस्ट टेक्नोलॉजी सपोर्ट लाके, बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाके, किस तरीके से ब्रॉडकास्टर्स जब पे चैनल्स शुरू हुए उनसे कंटेंट हासिल करके ऑपरेटर भाइयों को दे और वहां से कस्टमर को पहुंचे। तो जहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल था, अबाउट 10-15 साल में जब आई थिंक मुझे याद है कि आईएमसी 2000 में फाइबर शुरू किया, 2000 में, आज हो गए 21 साल। अब 2012, 13, 14 में हम हिट्स पे गए, हेड एंड इन द स्काई, वी आर द ओनली हिट्स कंपनी इन इंडिया। क्यों गए? 70% इंडिया रूरल एरिया में है। नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए, वहां हेड एंड लगाना मुश्किल है। वहां हमने केबल ऑपरेटर प्रेमाइस इक्विपमेंट बनाया, जो एक छोटे से रेफ्रिजरेटर में आपको सारे सिग्नल आ जाते। शॉर्ट पॉइंट में ये कहना चाहता हूं, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट एक चीज है, बट ऑपरेटर को किस तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी को मोनेटाइज करना है, ब्रॉडबैंड है। अब जैसे कहा गया, जैसे जैन साहब ने कहा कि आपके पास इक्विपमेंट है, जैसे और लोगों ने कहा कि आपके पास इंटीग्रेशन है, कन्वर्जेंस है। जो चैलेंज हमारी इंडस्ट्री के लिए, जो आप ग्रोथ की बात करते हैं, एक है ग्रोथ फिजिकली या ज्योग्राफिकली। मैं उल्टा देख रहा हूं, आज नेटफ्लिक्स 900 रुपए चार्ज करता है। कौन सा केबल ऑपरेटर 900 रुपए चार्ज करता है? आज भी हम 1 रुपए में एक चैनल दे रहे हैं। तो हमें, ठीक है अशोक सर, मैं इसी चीज को ले रहा हूं आपकी, और आप ही को पूछ रहा हूं कि ये जब हम लोग एनी सर्विस प्रोविजनिंग की बात कर रहे हैं और आप इंडस्ट्री के एक टॉप के ऊपर बैठे हुए हैं इस वक्त, एज ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एंड एज पर्सनली यू हैव बीन गाइडिंग फोर्स टू ऑल ऑफ अस, इसमें लीनियर टेलीविजन का फ्यूचर क्या है? फिर आज की तारीख में आपने नेटफ्लिक्स का भी कंपैरिजन निकाला, उसके फाइनेंशियल कंपैरिजन की एक बात है, मगर नेटफ्लिक्स के टेकर भी तो है। मानते हैं, on one hand there is a decade old linear digital television service that is existing, और आपने जैसे राइटली कहा कि हमारे को एज एलसीओ काफी रिस्पेक्ट हासिल है लोगों का, वी आर वेरी रिस्पेक्टेड at homes of the end user, but what actually as और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जिग्नेश सर भी कहते हैं कि अब तो हम एनी सर्विस प्रोवाइडर हो गए हैं। अब एनी सर्विस प्रोवाइडर का लीनियर टेलीविजन के फ्यूचर के साथ कैसे कनेक्शन है, और हम लीनियर टेलीविजन के फ्यूचर को कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो वर्ड लीनियर है ना, ये आउटमोडेड है। आज है डिजिटल सर्विस प्रोविजन। आज केबल को ये भूल जाना है कि एक जमाने में हम केबल ऑपरेटर थे। मैं जो होता था ना, लास्ट माइल ओनर मैं कहता था उनको। मैंने कहा लोकल केबल ऑपरेटर एक प्रकार का धिक्कार है इस इंडस्ट्री पे। 60,000 हमारे भाई है, उन्होंने अपने खून पसीना से इंडस्ट्री बनाई है। तो जहां तक लीनियर का सवाल है, लीनियर की जगह आप वर्ड डिजिटल यूज करिए। आज आप देखिए, आईपीएल चल रहा है, आईपीएल आप हॉटस्टार पे भी देख सकते हैं, आईपीएल आप स्टार पे भी देख सकते हैं। तो ज्यादातर लोग स्टार पे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वहां की क्वालिटी इज मच बेटर। जितना हम लोग टेक्नोलॉजी पे ध्यान देंगे, जितना हम लोग केबल सर्विस को वैल्यू फॉर मनी रखेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 10 पैसे में सिग्नल दें या 10 रुपए में 100 चैनल दें। हम ये कह रहे हैं आप कस्टमर को अच्छी सर्विस दें। लीनियर कहीं जाने वाला नहीं है अगले 25 सालों के लिए।
और अगर OTT भी है, OTT था जब तक लॉकडाउन था। अब जब लॉकडाउन लिफ्ट हो गया है, लोगों को समय नहीं है, आज ज्यादा समय जाता है जूम कॉल्स में, तो लोग नेटफ्लिक्स देने के लिए उनको समय कहाँ है? कितने ऑफिस आज घर से काम कर रहे हैं। बट ये मौका हमारे केबल भाइयों को देखना चाहिए था कि जब इतने लोग ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं टू वर्क फ्रॉम होम, तो ये क्यों नहीं अकर होता हमारी इंडस्ट्री को? तो बड़ी कंपनियों को जाके कहो कि जी हम आपको बल्क ब्रॉडबैंड देंगे और उससे आपका कमर्शियल ब्रॉडबैंड होगा यूज। मैं इसी पर आ रहा हूं कि अशोक सर आपने एक बहुत पर्टिनेंट बात कही है कि हमारे लोगों को देखना चाहिए था, मगर अभी देवचंद सर कह रहे थे कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है उसका भी एक बहुत बड़ा फेल्यूर है। इनफैक्ट मुझको जैन सर को इसमें कूल इन करना है कि जैन साहब, इतने वर्षों से हमारी मेक इन इंडिया चल रही है, कोई आज 2-4 साल में थोड़ी ये आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया आया है। हम सारे लोग ही अपना अपना स्वदेशी निकालिए, अपना स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाते रहे, इस बात की ओर बात करते रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये चाइनीज डिपेंडेंस की वजह से, और जैसा अभी अपने पैनल में कहा गया कि हमारा मैन्युफैक्चरर ट्रेडर बन गया, इस मेंटालिटी की वजह से हमारी इंडस्ट्री का बड़ा फेल्यूर हमको देखने को मिला है आज। डॉक्टर जैन। Yeah, actually China has gone into our heads, in our soul and in our body, and that was one of the biggest disadvantages. And now they are sitting on our borders, so they have captured us from all corners. Now we have to wake up. So government has rightly come up with this idea of, with this theme, Atmanirbhar, that you see, India is a big country. It has big talent. It has a lot of population, big population. And if we don't really make our own products, then, we will be beggars forever. So we have to now really work hard. We have to think also very, very correctly that our next generation, doesn't become like us, that anybody comes and throws anything and we will collect it. No, we have to change it. So our mindset has to change. We have to make things here. We have to start thinking, and government is helping. So I think आपकी बातें, डॉक्टर साहब आपकी बातें बड़ी फंडामेंटली करेक्ट हैं कि हमें थिंकिंग बदलना चाहिए, आत्मनिर्भर का थीम करना चाहिए, ये है। परंतु पहले तो आपने सबसे पहले यही बात कह दी कि चाइना ने सब तरफ से घेर लिया है और अब हमारा आत्मनिर्भर एक थीम है। जिग्नेश सर, अलाउ मी टू आस्क जिग्नेश सर, मुझको बताइए अब ट्रेडर का होगा क्या? क्योंकि ट्रेडिंग में, आज ट्रेडिंग के अंदर में ये चैलेंज हमारे सामने आकर के खड़ा है कि चाइना का इंडो चाइना रिलेशनशिप का सिचुएशन आप सब लोगों के सामने है, लॉकडाउन और कोविड का सिचुएशन इस तरह से है, हम सब लोग ट्रेडर बन करके रह गए हैं और ट्रेडिंग भी चलने का चांस कम हो गया है। अब हमारी ट्रेडिंग का भी होगा क्या? अगर ट्रेडिंग तकलीफ में आता है तो क्या डिप्लॉयमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी तकलीफ में आएगा? और जो अभी कहा जा रहा था कि हम लोगों को एनी सर्विस प्रोविजन में जाना है, अगर डिवाइसेस और सिस्टम ही नहीं है तो कौन सी सर्विस और कौन सी एनी सर्विस फॉर दैट मैटर? क्या हम लोग एक ट्रबल की तरफ को चल रहे हैं या ट्रबल टाइम अहेड, ऐसा कुछ हो रहा है हमारे साथ? अतुल जी, ऐसा है कि जैसे कि आप बोल रहे हो कि चाइना ने हमें घेरा है या जो भी है वो, I have somewhat different point of view for this statement. China is one of the most powerful GSC, मतलब वो ग्लोबल सप्लाई चेन का पूरे विश्व का एक बहुत ही बड़ा एक हब है. Because of so many reasons that after 1980 वहाँ की सरकार ने बहुत मतलब अच्छी तरह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है, जो and this is not a miracle that we are seeing in 2020 or we were seeing in 2015. 2015 या 2020 की बात नहीं है, इसके जो बीज है वो तो 1980 से चालू हुए हैं. तो if at all we want to we cannot say कि we want to replace China, but हम अगर कुछ उस दिशा में कर सकते हैं कि मैंने शायद पहले भी शेयर किया था
कि भाई सरकार को एकदम बड़ा पुश देना होगा इंडस्ट्रीज को, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को और यहाँ के लोकल ट्रेड कंपनीज को और सप्लायर्स को. They have to push them and they have to support them. So like what is happening into China. Now your one more question that what about this trade and trading community etc. सब ऐसा है, pure trade is different thing, but a good trade company has to come up since many years. But we have seen कि उनको अपने आप को इमर्ज करना होगा. They have to put themselves as value-added resellers, proper good service providers, proper making some good system integration and providing solution. हर ट्रेड का जमाना अलग है और अभी जो है one has to become this type of companies have to engage themselves to again, अगर आपके अपने कस्टमर आपके एजाइल है और अडैप्टिव है तो आपको तो उससे पहले होना पड़ेगा. तो they have to educate themselves and they have to try to share their views to different customers. देवचंद जी, जिग्नेश मेहता सर को रिएक्ट कीजिए कि हमें वैल्यू एडेड रीसेलर बनना पड़ेगा और अच्छा सिस्टम इंटीग्रेटर हमारे को बनना पड़ेगा. और अपलिंग के दृष्टिकोण से भी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम इंटीग्रेशन में इंडियनाइजेशन का कितना एक्सटेंट है और कितना पेनिट्रेशन आपको लगता है हो रहा है. अभी तो बातें फिलोसॉफिकल हो रही है कि सरकार को अमुक करना चाहिए और हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ना चाहिए. आज की स्थिति क्या है कि कितना इंडियनाइजेशन है और कितने सिस्टम इंटीग्रेशन में हम वैल्यू एक्चुअल ऐड कर रहे हैं? यस, जिग्नेश भाई ने बहुत राइटली कहा कि ट्रेडर्स अब सिर्फ ट्रेडर्स नहीं बचे हैं या उनको ट्रेडर्स नहीं रह सकते. दे हैव टू बी वैल्यू एडेड रिसेलर्स, दे हैव टू बी सिस्टम इंटीग्रेटर्स. और वो पॉइंट जो ऑपरेटर्स भाइयों है उनको एडुकेट करना और उनको आगे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, सिखाना, वो पूरा स्टेप्स करना है उनको. आज के तारीख में आपका जो प्रीवियस क्वेश्चंस भी है, जैसे चाइना ने इतना ग्रो कर दिया और इंडिया लास्ट 10 साल से हम सोच रहे हैं, लेकिन हम एट प्रेजेंट वही स्टेज में है जो 10 साल पहले थे, मे भी थोड़ा बहुत आगे पहुंचे हैं मैन्युफैक्चरिंग में. वो बिकॉज अपना यहाँ जो इकोसिस्टम है, आज इंडियनाइजेशन जो इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए हमें जो काम करना है, जो इकोसिस्टम है वो अभी तक बिल्ड नहीं हुआ है. हम प्रोडक्ट्स तो चलो चाइना से ये करते हैं, एट प्रेजेंट पूरा रिलायबल थे कि चाइना ऊपर, नॉट जस्ट केबल टीवी एंड ब्रॉडबैंड, ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पूरी चाइना पे डिपेंडेंस है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि वहाँ इतना ग्रोथ है, वहाँ पूरा इकोसिस्टम बिल्ट है. हम सिर्फ जो सोच रहे थे, हम यहाँ जो कर रहे हैं वो सिर्फ असेंबलिंग काम या असेंबलिंग का काम कर रहे थे. रॉ मटेरियल है, उसके जो स्पेयर पार्ट्स है, वो तो हमें फिर भी चाइना से ही आ रहे हैं, चाइना से ही मंगाने पड़ रहे थे. चाइना फॉर दैट. बात बिल्कुल ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है. मैं इसी चीज को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहा था कि हमें सारी चीजें चाइना से लानी पड़ रही है, टेक्नोलॉजी भी चाइना से आ रही है. क्या इन सब चीजों का इनफैक्ट सभी पैनलिस्ट को इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पॉन्डर करना चाहिए. बट मैं शुरुआत अशोक सर से करना चाहता हूं कि सर, क्या इन सब प्रॉब्लम्स का बड़े टेल्को पार्टनर्स के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है? हमें ये दिखाई दे रहा है कि जियो की एंट्री हमारे एनी सर्विस प्रोविजनिंग के अंदर में इतनी स्ट्रांगली हो रही है. जो डिवाइस इकोसिस्टम भी वो लेकर के आ रहे हैं और जो सर्विस इकोसिस्टम भी वो लेकर के आ रहे हैं, और उसके अंदर में इंडिजनाइजेशन, इंडियन सर्विस प्रोविजनिंग, ये सब चीजें जिस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं. हमारा एक तरफ बहुत छोटा केबल ऑपरेटर है और दूसरी तरफ विश्व के बड़े कंपनियों में से कुछ लोग हैं जो एक ही लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर आकर के एक दूसरे को कॉम्पीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. क्या भारत के इस परिदृश्य में बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिंग पिक्चर दिखाई दे रहा है और उसका हमारे छोटे वाले प्लेयर्स के ऊपर इफेक्ट क्या है? देखिए, जहां तक छोटे वाले प्लेयर्स हैं उसके बहुत सिंपल सॉल्यूशंस हैं. एक है कि आप अपना मल्टी सिस्टम ऑपरेटर चुनिए, करेक्ट, उनके साथ जुड़िए, उनके साथ एक हेल्दी बिजनेस पार्टनरशिप रखिए, उनसे टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट लीजिए, उनसे अगर आप चाहें तो उनको कंटेंट सपोर्ट भी लीजिए, और आप एक रेवेन्यू शेयरिंग रेजिम में चले जाएं. नंबर 1. नंबर 2, जहां तक रहा जियो का सवाल, आज एयरटेल भी कह रहा है कि हमने केबल ऑपरेटर से बात कर ली है और हम उनको ब्रॉडबैंड देंगे. ये आज सुबह की बात है और मैंने अपने भेजा था. तो मुझे ख्याल सुबह सुबह ये आया
कि एयरटेल कर सकता है और हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब कोई समस्या आती है, हमें साथ में जो हमारे जो 60,000 भाई हैं, मिल के साथ में केबल कोऑपरेटिव्स बनाएं, एमएसओ से बात करें, सरकार से बात करें। हमारी आवाज बुलंद होगी जब हम साथ में होंगे। आज जिस प्रकार के प्रेडेटरी प्रैक्टिसेस दिए जा रहे हैं, ज्यादातर आप सब जानते हैं कि कुछ ऐसे बॉक्सेस हैं जो उसमें फ्री कंटेंट है। केबल ऑपरेटर और एमएसओ को कोर्ट जाके वो हासिल करना पड़ता है चैनल, वही चैनल मिलता है दूसरे बॉक्स पे। ये आप जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए पहले हमें अपना डेंजर को समझ के हमें साथ होना पड़ेगा। अगर हम साथ में होंगे तो कोई बड़ी शक्ति हमें कुछ नहीं कर सकता। करेक्ट। मैं समझता हूँ अशोक सर के साथ रहना और कोऑपरेटिव काम, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एस्टैब्लिश करना, ये विषय मैं फिर आने वाला हूँ। मगर एक बात आपने बहुत खूबसूरत कही कि ये जो फ्री देने वाला कार्यक्रम है, तो आप तो देख ही रहे हैं कि जियो का जब भी किसी चीज का ऑफरिंग आ जाता है, कई महीनों तक कई सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती हैं और उसके बाद में उसका कब पता नहीं कोई बिलिंग करता है। कुछ लोग ये कहते रहते हैं मार्केट में कि हमको लाखों रुपए का बिल आ गया, कुछ लोग कहते हैं कि हमने वो निकाल करके दे दिया। तो ये एक्चुअल एक लेवल प्लेइंग फील्ड होने के बावजूद बड़े टेलकोज की एंट्री मार्केट को डिस्टेबलाइज कर रही है या किसी टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस की तरफ हम सब लोगों को बूटस्ट्रैप करके ले जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। आपका क्या आकलन है? देखिए अभी तक तो चैलेंज शुरू हुआ है, आप अगले साल देखिए क्या होता है। उसके लिए ये करना पड़ेगा, जब आप देखते हैं कि कोई फ्री प्रोडक्ट आपको दे रहा है और आप उसके लिए चार्ज कर रहे हैं, आप बताइए कि हमारे केबल इंडस्ट्री भाई में से किसने ये मामला सरकार या ट्राई से उठाया है? कौन गया है कंपटीशन कमीशन कि ये बिल्कुल हमारे इंडियन लीगल सिस्टम के खिलाफ है? आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड केबल के लिए कभी था ही नहीं। ये 2017-2018 से जब ये एनटीओ आया है, जिसको भी हम पूरे तरीके से समझ नहीं पाए कि वो हमारे फायदे में है। हमें तो लगता है कि पे चैनल प्राइस बढ़ गए इसलिए ब्रॉडकास्टर सही है। नहीं, ये भी एक बात है अशोक सर कि एनटीओ का आना ये हमारी ही बात को थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि हम लोग एक तरफ कह रहे हैं कि हमारा एमएसओ के साथ में रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, हमें एक होकर के आने वाले नए एंट्रेंट्स के साथ में एक काउंटरिंग सर्विस देनी चाहिए ताकि वो लेवल प्लेइंग फील्ड लगे। मगर करे तो क्या करे, हमारा रिलेशन जो लोकल केबल ऑपरेटर का जो रिलेशन एमएसओ के साथ में है, उसको तो गवर्नमेंट ने, टीआरएआई ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। एनटीओ 2 दरवाजे पर है, अब आने के बाद में होगा क्या? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर एनटीओ 2 को भी देखें, सिंपल चीज है, आप उसके कंसल्टेशन पेपर जो होते हैं उसके बाद एक्सप्लेनेटरी नोट आता है। जब भी कोई टैरिफ ऑर्डर सरकार इशू करती है उसमें एक टैरिफ ऑर्डर होता है, टैरिफ ऑर्डर के साथ एक एक्सप्लेनेटरी नोट होता है। आप पेज 48 पढ़ लीजिए। देखिए हमारे को, मैं आपको बताऊं हमारी समस्या क्या है, हम लोग पढ़ते नहीं है सर। मगर एक मैं बात बताऊं, मैं तो इसीलिए मैं इस आपका समय नहीं लूंगा। मैं इतना ही कह रहा हूं, I am only saying you have come to a conclusion that TRAI is regulating us. I am saying TRAI is helping you or trying to help you to survive. But if you understand the meaning of regulation और उसका आप सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। This is my view. इसका एजुकेशन कहाँ अवेलेबल है? हम तो यही सुन रहे हैं कोलोक्वियल लैंग्वेज में। अब 48 पेजेस तक किसने पढ़ा है मुझे नहीं मालूम, परंतु कोलोक्वियल लैंग्वेज में तो हम यही समझ रहे हैं कि एनटीओ 2 आएगा तो चैनल की कीमत बढ़ेगी। ये बिल्कुल गलत है। एक तरफ ये फ्री बीज देने वाले लोग हैं, एक तरफ चैनल की कीमत बढ़ेगी, ये बातें हैं। एनटीओ 2, मेरा सवाल ये है, सीधा सवाल ये है कि एनटीओ 2 आ रहा है क्या? आ रहा है तो उसकी वजह से हमारे जेब के ऊपर एज ए कंज्यूमर और एज एलसीओ क्या फर्क पड़ रहा है? एज ए फ्रेटर्निटी हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है? वेरी क्विक, हमारे पास एक आधी मिनट बचा हुआ है। Absolutely no difference. Correct. NTO is sub judice in the Bombay High Court.
आज ब्रॉडकास्टर्स लड़ रहे हैं कि ट्राई का कोई पावर नहीं होना चाहिए, उनको रेगुलेट करना, ये कोई नई बात नहीं है। 2004 से कितनी बार ये मैटर सुप्रीम कोर्ट गए हैं, ये बंबई हाई कोर्ट का भी मैटर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। आज से 5 साल बाद कुछ जजमेंट आएगा। NTO 2 is not going to make a difference, but NTO 1 के जो फायदे हैं, होने की वजह से it is not going to make a difference. You must benefit from regulation given to you. करेक्ट, हम लोग रैपअप की तरफ को बढ़ रहे हैं। मैं इनफैक्ट सभी पैनलिस्ट के साथ में एक मिनट का या बहुत छोटा सा एक कमेंट पूछना चाहूंगा कि क्या वो मंत्रा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई मंत्रा है भी जिसके लिए, जिसको अडॉप्ट करने से हम लोग एक्सपांडिंग द होराइजन की तरफ को एक मीनिंगफुल तरीके से देख पाएंगे? डॉक्टर जैन से मैं शुरुआत करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, see, in all this and in this concluding comment, Dr. Saab, concluding comment very quick. Yes, data has got unlimited applications and opportunities. Correct. And therefore, cable operators must get together as suggested by Sri Mansukhani ji, and must form cooperatives or some companies, and they should start looking at using this convergent technologies in a divergent manner, which is many applications, including startup projects in cable TV industry, not only for manufacturers, but also for cable operators. They should think in that direction. Correct. Devchand ji, concluding comment quickly, और क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? जैसे केबल नेटवर्क्स अभी ऑलरेडी केबल टीवी और है, वो तो रहना ही है। लोगों का व्यूइंग पैटर्न ऐसा है इंडिया में है कि केबल टीवी विल ऑलवेज रिमेन, बट जो ग्रोथ होगी वो ग्रोथ उतना नहीं मिल रहा है केबल में। सो दे हैव टू ऐड ब्रॉडबैंड, दे हैव टू ऐड OTT एंड अदर सर्विसेज, जैसे वैल्यू एडेड सर्विसेज, और जैन सर ने बताया कि और सर्विसेज डेटा और ये देना है। तो दे हैव टू अडॉप्ट अ हाइब्रिड मॉडल, जहां उनका केबल टीवी, OTT और उसके साथ जो रिलेटेड जो एडुकेशन है, ई-कॉमर्स है, या जो वैल्यू एडेड लोकलाइज चैनल्स ये कर सकते हैं, उसको बिल्ड करें। That will give a big growth to the industry. So they don't have to just stay on the cable TV industry. They have to work on the broadband, OTT, and converge on the same things. That will be the real growth factors for the next 5 to 10 years. The horizon के बाद वही दिख रहा है, hybrid model जहाँ cable and broadband and the value-added services all work together on the same network. Jinesh bhai. Yeah, there are just आपने जैसे कहा कि thumb rule क्या है? Let me summarize. First, कोई मंत्रा है क्या? मंत्रा thumb rule is all derived from these senior fellows, उनसे सीखते हैं सब। एक तो सबसे पहले जैसे मनसुखानी साहब ने बहुत ही करेक्टली बताया कि you have to be more collaborative, cooperative and constructive within your framework and within your people. हमारे लोगों, सर्विस प्रोवाइडर जो भी रहेगा, चाहे ISP रहेंगे, चाहे MSO रहेंगे, LCO रहेंगे, they have to more एक दूसरे के साथ में सायुज्य करके, एक दूसरे के साथ में सिंक करके काम करना है। बिकॉज यू मे हैव, एंड आपने जो शब्द का प्रयोजन किया, दिस लेवल प्लेइंग फील्ड, नो कमेंट फॉर दैट, मतलब सेम लेवल तो है नहीं, बट आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस पब्लिक प्लेटफॉर्म फॉर द सेम। और डिसएग्रीमेंट, यू आर वेलकम टू डिसएग्री आल्सो, दैट इज नॉट, प्लीज बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट इट इज नॉट, टू बी ऑनेस्ट इट इज नॉट फाइन। वन, दूसरी बात एक ये है कि मैंने जैसे कि अभी जो केबल आपका एक दूसरे के साथ में जो फाइटिंग वाला जो टाइम था, भाई केबल काटा, इसके ये सोसाइटी में घुसे, उधर पैम्फलेट बेचे, उधर मैसेजेस किए, प्लीज स्टॉप। आई वुड रादर से थोड़ा सा एक्सट्रीम शब्द वापरूंगा, दिस इज ऑल नॉनसेंस एज ऑफ नाउ, राइट? उसको बंद करिए, आप एक दूसरे के साथ में जुड़िए। हमारी फर्टिलिटी को चाहे ऑपरेशंस में हुए, चाहे ट्रेड में हुए, चाहे इंपोर्ट में हुए, चाहे सिस्टम इंटीग्रेशन में है, we have to align with each other. This is 2. Number 3, you have to make a very proper network of yourself. आपको बहुत ही बेहतरीन नेटवर्क अपना हाईवे बनाना पड़ेगा कि आप आज आप OTT, IPTV, केबल टीवी सब डिलीवर कर पाओगे, अच्छी तरह से करोगे। फ्यूचर में और भी कुछ आएगा, आने वाले 2 साल में, 5 साल में, 7 साल में। You have to be an SP to your customer. आपका कस्टमर के साथ में सर्विस और रिलेशनशिप has to be so strong and good enough कि वो आपको छोड़ के दूसरे के पास में न जावे। Then you align with your any MSO, you align with your any bandwidth provider, whatever.
Number 4, follow these 3 rules. You will be winning. Thank you. Thank you. Ashok sir. Combine, survive, and be alert and awake. This is not a mantra. This is a request. Oh. Yeah, this could be request. Combine, Survive, survive, and be alert. Be alert. अशोक जी वाकई में एक्चुअली आज का जो सब्जेक्ट है, इनफैक्ट मेरे पास में इतने डिस्टिंग्विश्ड और इतने एक्सपीरियंस और इतने साल्वर्ड पैनलिस्ट हैं कि इन चीजों को मैं चाहता हूं कि और 40 मिनट या और 60 मिनट भी दिए जाएं तो कम पड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारी चीजें हैं जो अनछुई रह गई, अनमेंशन्ड रह गई। ये सब्जेक्ट हमने सिर्फ आज डिस्कशन के लिए ले लिया, ये सिर्फ एक कर्टेन रेजर है, ये सिर्फ एक थॉट प्रोवोकिंग आई ओपनर है, ऐसा मैं समझता हूं। ये पैनल डिस्कशन भी एक सिर्फ प्रोवोकेशन के लिए, एक सिर्फ डिस्कशन शुरू करने के लिए काफी है। एक तरफ हमें यूनाइट होना है, एक तरफ हमें अलर्ट रहना है, एक तरफ हमें हाइब्रिड कन्वर्जन टेक्नोलॉजीज का सहारा लेना है, दूसरी तरफ ये जो नॉनसेंस हमारी इंडस्ट्री में चल रहा था वो बंद करना है, तीसरी तरफ हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझको इन चीजों में से कुछ सार निकालने के लिए कहती है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमारे को अपने केबल इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियलाइज करना है, केबल में स्टार्टअप करना है। जब मेरे स्टॉलवर्ड्स मुझको ये कहते हैं, हमारी इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ड्स ये कहते रहते हैं कि एक तरफ हमको स्टार्टअप करना है, तब उसी दिन उसी पल मुझको ये भी दिखाई देता है कि उसी फ्रैटर्निटी में जियो के जैसे एस्टैब्लिश्ड लोग भी आ रहे हैं। क्या ये स्टार्टअप का फील्ड है? क्या वो बेनिफिट है? क्या वो शहद है? क्या वो गुड़ की डली है हमारे बिजनेस में, जिसकी वजह से टेल्को तक इसके अंदर में अपने अरबों रुपये डाल करके आ गए? और क्या है वो शहद की डली जो अपने हाथ में से, व्हाट इज दैट attraction point that we are likely to be losing to the entry or invasion to the telcos? In fact, क्या हम सब लोग मिलकर के, मैंने जिग्नेश भाई की तरफ से ये सुना कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड को डिनाई कर रहे हैं, मगर अगर आज एक केबल ऑपरेटर और एक टेल्को, जियो या एयरटेल, एक ही कस्टमर को एक ही सर्विस देने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा मानना पड़ेगा कि अगर उसको लेवल प्लेइंग फील्ड ना कहें, रूल ऑफ गेम अलग होने की वजह से जिग्नेश भाई कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, फिर भी मेरा ये मानना है कि क्या है वो इंटरेस्ट जो हमें एज ए केबल और स्कैट फ्रैटर्निटी रखना है, क्या है वो इंटरेस्ट जिसके लिए सारे टेल्कोज हमारी तरफ को चल करके आ रहे हैं, क्या है जिसकी वजह से हम लोगों को सरवाइव करना आज के तारीख में थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है, क्या हमें करने से, क्या है वो हम करें जिसकी वजह से हम लोग भी एक ग्रोइंग इकोसिस्टम का मीनिंगफुल पार्ट बने। मुझे लगता है डॉक्टर नाइक साइनिंग ऑफ ऑन दिस नोट। Am I audible? Yes. 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 So on this note, I sign off from this. But I definitely request all my distinguished panelists to stay put. We are actually taking some questions, and we will wait for the questions. There have been a couple of questions here. All participants and all viewers to this panel, I'm hoping that will be enlightened. I'm waiting for a couple of questions that would have been there. If there are any, I would request Manoj ji and the backend panel to throw the questions if there are any. I pay extreme regards and heartfelt thanks to the panelists. We will wait for another 5 seconds to see if there are any questions. One question: TRAI's recommendation on STB interoperability will allow consumers to change their DTH operator without buying a set-top box. How does the panelist view this development?
Can we start with Ashok ji? Interoperability has been talked about for the last 20 years. Today, there are about 100 million set-top boxes which are not interoperable. Uska kya hoga? Aage se ho sakta hai. I'm not denying that interoperability has been an objective of the government for the last 20 years. At the present moment, it is a license condition in DTH which has not been at all insisted upon. As far as cable is concerned, instead of interoperability, which seems to be the objective of some people, hybrid boxes and how to encourage Indianization of hybrid boxes is more important, because it will also serve national objectives in terms of broadband, education, healthcare, and many things that Mr. Jain was talking about. Correct. Dr. Saab. Well, interoperability, as Mr. Mansukhani said, has been discussed for a long, and there is already several groups, and TRAI is putting all efforts. But it looks that yes, for future, we can build boxes which will be interoperable. Say like in satellite for Doordarshan, we are making set-top boxes which are interoperable. Okay. And regulations are already there, but you know, it is not economical. So we have to bring the cost economy into the interoperability. Then so interoperability is okay for future. In short, Devchand ji, very quick. Yes. Yeah, very rightly said by Mansukhani sir. ये already millions of boxes are already on the field. उसे तो हम change नहीं कर सकते हैं. और जो ये interoperable का जो फंडा है, why they want it, अगर वो cost कम करने के लिए है, so that is not possible because interoperable boxes will cost more. So overall, it will add to the cost of the subscriber, or it will not affect easy this thing. So that question has always remained as it is for the last 20 years. Correct. It is not. It is no definite answer. Jignesh sir. It is more better to focus on hybrid things or more value-added other parts than the interoperable box. Correct. Because of the cash and other things, it's really difficult. Correct sir. Jignesh ji, quick comment. ये क्वेश्चन पर्टिनेंट है, इसलिए मैं सब पैनलिस्ट को एक-एक कमेंट देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं. Very quick. Technically, it is not at all feasible to swap these millions of boxes, जो लाखों boxes, लाखों की तादाद में, few crores boxes जो हिंदुस्तान में हर एक कस्टमर के पास में है, उसको स्वैप करना बहुत ही मुश्किल है. मैं कहूँगा कि ये नामुमकिन है. 1, 2 फ्यूचर के लिए ठीक है, सरकार करे और फिर वो सब कैश एसटीबी. मनोज जी, ऑन द होल हमें लगता है कि यही एक बात निकल करके आ रही है कि पहले जो बॉक्सेस लगे हुए हैं उसमें कुछ चेंज नहीं किया जा सकता. फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट को इस तरह की कोई चीज करनी है तो करनी है. एनी अदर क्वेश्चंस? A last question to all the panelists in one line, please. How do you all see the future of the SCAD domain in the next 5 to 10 years? Wow. Dr. Saab, who would like to take it first? Well, SCAD domain is very useful. It has served its purpose for the last 25 years. And they should really put all efforts to educate cable operators, cable industry, and should really unite. Their job should be uniting all of us so that we can raise our voice to the government. Another 5 years, we will be seen more united. Jignesh, right? Yes. I am told to confine it to one line, please. Jignesh, bhai. SCAD domain as usual, मतलब इतने सालों से बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान करते आए हैं इंडस्ट्री को, और thanks to SCAD and their team also in the past, so their contribution to the industry was very good. And अभी 2025 में और उसके बाद में 2030 में भी जब ये वेबिनार होगा, तभी मैं वापस यही देखूंगा कि मनसुखानी साहब और टेंग साहब इस डोमेन में वापस आवे और हमें कुछ बतावे. They could share their views also. So I am very much positive and optimistic. Thank you. Very, very, very positive and optimistic note. मैं अशोक सर की कमेंट लास्ट में रखना चाहता हूं.
देवचंद जी, Yeah, as a SCAT domain, आज because cable TV और जो broadband industry है, that has become a lifeline. आज वो it is a must of everybody. आज वो basic rights हो गए हैं. आज everybody will require that. In the next few years, broadband cable तो लगना ही है. तो SCAT domain has a very important part. और वो growth और भी ज़्यादा और भी forceful होगा. It will always remain and help us. It will always remain, and because it is the necessity. It is a basic fundamental requirement now. Cable and. Sir, we are left with only few seconds, and I want to go to Ashok ji also for the concluding comment. Ashok ji, please, only few seconds, please. SCAT should be more interactive. It should combine with the top suppliers like Mr. Jain, Mr. Haria, and others, and demonstrate the benefit of new technology to our cable operator brothers, so that then they begin to realize that their future lies in further investment in technology. Most important is take care of the customer like he was your family member. Take care of the customer like he is your family member. If I am allowed to give a comment of mine, personally mine, I would say that SCAT domain in the next 5 years may be called as IPTV OTT domain. Next 3 years at least, I see that it will be renamed. The players will remain the same. The guiding force will remain the same. More financial infusion, more technological infusion is in. There is a lot of new technological infusion that is happening on the top, and that will translate into the grounds in the next 3 to 5 years to come. It is possible that SCAT may be called as IPTV OTT domain. Manoj ji, thank you very much. And Dr. Naik signing off with my illustrious panelists. Thank you so much, panelists. Thank you so much, SCAT. Thank you so much, viewers, for logging in and e-meeting us. We are hoping that our small effort of reaching you out with these thoughts to provoke your thoughts is fruitful today. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you.